the basic concept of the menu engineering and what are the importance, why do we need the menu engineering, and what we understand by the menu engineering. We have already discussed all these points in our previous session. So today we will discuss this sheet, which is which more specifically is for the menu engineering purposes. Those all concept has already been applied in this worksheet. So today we will try to understand this entire worksheet. Then we'll move further to the menu fatigue. Okay. These points we will cover in today's session. So first we are going through the this menu worksheet, which is already given on the screen. Okay. So this is the worksheet for XYZ restaurant. Okay. The restaurant name can be anything. Okay. Here they have given the restaurant XYZ. We can also mention restaurant Pulkit, or we can also mention the barbecue restaurant. These kind of thing we can mention restaurant, or this is the worksheet. So here just we need to have three things. First is menu item, okay, and second number of sold, and third is item cost, the food item cost, and the selling price. These, with the help of these 4 points, we can calculate all these remaining points which they have given already over the screen. With the help of all these 4 points, we can calculate the menu mix. We can also calculate the contribution margin. Okay, with the help of the selling price of the item, and we can also calculate the cost. Apart from that, we can also calculate the revenue, the menu, the contribution margin of the menu of every item, and we can also calculate the contribution margin for as per the category. Okay, then menu mix as per the category, and we can, after the calculating all these points, we can place the items as per the classification which the BCG consulting group, Boston Consulting Group has given, and which is adopted at 1999, which is given by the Casavanna and Mr. Donald Smith, where we have the four different square. Okay, so we can place according to these high and low. Okay, by seeing these 2 points, we can place the item according to this matrix. Okay, which is the menu engineering matrix. So now we are moving further to the to understand the sheet. First, they have given all the 4 points, the menu. First, they have given the menu item. They have given the 10 items. Okay, such as tandoori murg, tandoori fish, Shah Murge Piazza. Okay, Jahangir Korma, Nargiri Kufta, Murga Afghani, Murga Biryani, okay, Akbari Murg Masala, Tandoori Bakra, and Dil. These all these items are in having the non-veg nature. Okay, so all non-veg items they are mentioning, and they also mention the number of sold. Okay, number of sold मतलब कि इन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कितने सोल्ड किए हैं. ये फॉर इंस्टेंस दे हैव मेंशन 150. ठीक है, 150 मतलब ये 150 प्लेट भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड ये 150 एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो इन्होंने सेल किए हैं स्पेसिफिक पीरियड में तंदूरी मुर्ग के. इसके अलावा इन्होंने मेंशन की है इसकी कॉस्ट जो कि है 55. ठीक है, पर आइटम की है, और इसकी जो आइटम की सेलिंग प्राइस है वो 120 पर आइटम है. ठीक है, ओके, तो पर आइटम इसकी 55 है, और इसकी जो पर आइटम प्राइस सेलिंग प्राइस है 120 है, और टोटल जो हमारा है वो 150 है. ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ सोल्ड हैं, और ये हमारे पर आइटम की कॉस्ट है. ये कॉस्ट है, ये सेलिंग है. यानी कि अगर हमने 55 रुपये में तंदूरी मुर्ग की हमारी रॉ कॉस्ट है,
तो हमने उसको सेल किया है 120 में। तो यानी कि हमें 65 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो हमारा मार्जिन है। ये कैसे निकलेगा? ये तो सिंपल है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे हमने ये 55 रुपये में खरीदा था, यानी कि हमने जो मीट लिया था उसका मीट का पोर्शन 55 रुपीज़ में लिया, और उसको प्रिपेयर करने में उसके लेबर कॉस्ट सब लगा के हमने उसमें अपना मार्जिन जो लगाया वो फिर 120 में सेल कर दिया। अब अगर हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा इस आइटम का, तो पर आइटम हमारा हो गया 65। तो हम एक आइटम में 65 रुपये बचाते हैं, डॉलर या फिर रुपीज़, जिसमें भी ये चीज़ मेंशन होगी। ओके, फिर हमारा मेन्यू कॉस्ट की बात आती है, तो मेन्यू कॉस्ट यहाँ पर आइटम की है। ओके, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सोल्ड है 150 है। अब जब हमारा आइटम की कॉस्ट इतनी है और नंबर ऑफ सोल्ड कितने हैं, तो हमें अगर मेन्यू की कॉस्ट ये रहेगी तो हमें सभी को इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारी पर आइटम की, ये सारी ही हमारी जो कॉस्ट दी हुई है ये पर आइटम बेसिस पे है। पर आइटम मतलब कि एक आइटम हमारा इतने का है, तो अगर हमें जिस अमाउंट में हमने लिए होंगे उतने अमाउंट से हमें कैलकुलेट मल्टीप्लाई करना होगा। 10 लिए होंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 50 लिए होंगे 50 से, 200 लिए होंगे 200 से। ठीक है, तो यहाँ 150 हमारा चालू है, तो 150 को हमने 55 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको कॉस्ट को निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली कॉस्ट चाहिए 8250। इसी तरीके से अगर हमें सेलिंग निकालना होगा या फिर रेवेन्यू निकालना होगा, ठीक है, अगर हम सेलिंग की बात करें, जो सेलिंग है हमारा ये 120। ओके, तो अगर हम सेलिंग को नंबर ऑफ इससे जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा टोटल रेवेन्यू, यानी हमने जितना सेल किया है और जितने नंबर सेल किए उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे। ये वैसे ही है जैसे अगर हमने, अगर एक हमारा एक चॉकलेट पैकेट 10 रुपए का है, तो अगर हमने दिन में 50 पैकेट बेचे हैं, तो हमें अगर कैलकुलेट करना है कि हमारा टोटल कमाई कितनी करी हमने पूरे दिन में, तो 50 चॉकलेट्स को हम 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कि हमने दिन में इतने रुपए कमाए। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है कि अगर हमें रेवेन्यू का टोटल काउंट करना है पर डे का, या फिर जो भी हमारे जितने भी आइटम सेल हुए हैं, तो हमें उसको जितने नंबर हमने बेचे हैं, जितने भी चीज़ हमने बेची है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सेलिंग प्राइस से, तो हमारा रेवेन्यू आ जाएगा। और फिर अगर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन की, कि मेन्यू का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है, तो उसके लिए हमें जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाला पार्ट पहले हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ है। ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला था हमने, जहाँ पर मार्जिन हमारा 65 था, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से। ठीक है, तो ये हमारा फिर आ जाएगी ये वाली कॉस्ट। ठीक है, जो कि हमारी है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब हमारा ये सारी चीज़ें तो निकल गई, ये तो सिंपल वे में एक मल्टीप्लाई और एडिशन और माइनस वाली चीज़ें हैं, ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे। अब हमारी बात आती है जो ये दो लाइन है लास्ट, जो लास्ट के 2-3 कॉलम है, जो कि है ये वाला कॉलम। ठीक है, जिसमें इन्होंने हाई एंड लो लिखा है, और फिर ये वाला कि ये कैसे मेंशन करें। अब इसको निकालने के लिए हमने ऊपर 3 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, जब हमने स्टेप देखे थे तो उस वक्त हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो 3 फॉर्मूले वो क्या थे? पहला फॉर्मूला तो हमने ये पढ़ा था कि ये वाला देखो, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, इसको हमने लगाया है, और एक फॉर्मूला हमने नीचे पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हमने लगाया है। यहाँ पर हमारे 1 × 70 है, ये तो ऑलरेडी हमें, इसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, बस हम चेंज कर सकते हैं एन में। एन क्या होगा यहाँ पर? जो हमारे टोटल आइटम है। अब हमारे टोटल आइटम कितने हैं? 10। मेनू में 10 आइटम है ना हमारे, तो उसको हम अब 10 हमने प्लेस कर दिया, बाकी हमें कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं फॉर्मूले में, तो ये अनचेंज रहेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 70/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो अब ये जो मेनू मिक्स का अचीविंग या अचीवमेंट रेट है वो है 7। अब जो 7 से नीचे होंगी, ठीक है, जो भी वैल्यूज 7 से नीचे होंगी, 7 से नीचे किसकी वैल्यू होंगी? जिसकी जो मेनू मिक्स की वैल्यू, जो हमने मेनू मिक्स की परसेंटेज निकाली है, अगर वो 7 से कम होंगी तो वो जाएंगी लो में, और वो अगर 7 हुई या फिर 7 से ज़्यादा हुई तो वो जाएंगी हाई में।
जो वहाँ पर आप एल और एच देख रहे हैं ना, वही यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। जो 7 से कम होंगी वही लो में जाएंगी, जो 7 हुई या फिर 7 से ज़्यादा वैल्यू हुई वो हाई में जाएंगी। अब इसको देखते हैं हम शीट में कि ऐसे ही मेंशन है या अलग तरीके से मेंशन है। ठीक है, हम इस वाले पार्ट को देखते हैं मेन्यू में, उसमें जाके जो वर्कशीट दी हुई है हमें। ओके, तो हमारा ये है मेनू मिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो हमारा मेनू मिक्स है। अब मेनू मिक्स हमने कहाँ निकाली थी परसेंटेज, वो है हमारी कॉलम नंबर 3, ये है ना मेनू मिक्स। तो यहाँ पर अगर परसेंटेज 7 से कम है तो वो ऑटोमेटिकली लो में चली जाएगी, और अगर 7 से ज़्यादा है या फिर 7 है वो हमारी हाई में जाएगी। अब इसमें देखते हैं हम, ये वैल्यू कितनी है 5, जो कि कितनी है 7 से कम है, तो ये लो में चली गई। और ये है 12 जो कि 7 से ज़्यादा है, ये हाई में चली गई। ये है 2 जो कि 7 से कम है, ये फिर लो हो गई है। ठीक है, ये आइटम लो में चला गया। और इसकी मतलब कि ये हो गया कि हमारे जो मेनू में हम जब भी हम बात करते थे किसकी, जब हम मेनू इंजीनियरिंग की बात करते थे तो वहां पर हम सिर्फ दो लेके चलते थे। जब हम मैट्रिक्स की बात करते थे दो चीजें लेके चलते थे, पहला कंट्रीब्यूशन मार्जिन और दूसरा मेनू मिक्स। तो वही है ये, पहला कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये मेंशन है और ये मेनू मिक्स है, दोनों को ही हमने देखा है। तो मेनू मिक्स में हम यहाँ पर 7 जो हमें फॉर्मूला दिया होता है उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू कैलकुलेट करके लो और हाई में उसको हम प्लेस कर रहे हैं वैल्यू को देख के। अब यहाँ पर 7 से ज़्यादा है, ये हाई में चली गई है। ये देखो यहाँ पर 7 एग्जैक्ट 7 वैल्यू आ रही है, तो 7 या 7 से ज़्यादा जब भी कैसी वैल्यू आएगी तो वो हाई में जाएगी। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता लग गया, जो हमने मीनू की जो मैट्रिक्स पढ़ी थी मेनू इंजीनियरिंग की, जो हमें मिस्टर गसावाना और मिस्टर डोनाल्ड स्मिथ ने 1990 में दी थी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें की जरूरत होती है। पहला तो हमें चाहिए मेनू मिक्स, और दूसरा चाहिए हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन की वैल्यू। तभी हम उसको लो या हाई को देख के ही हम उसको उसके मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप नीचे भी सारी वैल्यूज देखेंगे, वो भी ऐसे ही हैं। ये भी 7 से ज़्यादा है तो हाई है, ये 7 से ज़्यादा हाई, ये 7 से ज़्यादा हाई, ये 7 से कम लो, ये 7 से ज़्यादा, ये भी हाई। ठीक है, अब हमें ये तो पता लग गया मेनू मिक्स की परसेंटेज वाला, ये वाला पार्ट समझ आ गया। अब हम ये कैसे निकालेंगे, जो कि है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए भी हमें एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमने स्टेप्स देखे थे मेन्यू इंजीनियरिंग के। ठीक है, जो कि है ये, ठीक है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज इक्वल टू मेन्यू आइटम का कंट्रीब्यूशन आइटम जो मार्जिन होगा वो उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। यानी पर हमने हर एक मेनू का आइटम जो भी हमारे 10 के 10 आइटम दिए हुए हैं, हर आइटम का हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला है, यानी कि सीएम निकाला है, और फिर हमने उसको ऐड भी किया है। अब देखते हैं हम उसको कैलकुलेट करके एक बार देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही भी है या नहीं। अब देखते हैं हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहाँ पर है मेनू का, ये है। ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का हमारा टोटल है वो है ये 147640। ओके, और जो हमारे नंबर ऑफ टोटल सोल्ड हैं वो है 3010। तो जब भी हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन को कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे, यानी कि जो हमारी ये वैल्यू है 147640, ये हमारा डिवाइड होगा 3010 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारी 49। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, और ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा तकरीबन 49। राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 49 की वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा 49 वाला हो गया। अब ये भी सिमिलर वे में जैसे हमने 7 वाला किया था, इसी तरीके से इसमें भी जो 49 से कम होंगे
वो आपके लो में जाएंगे, और जो 49 से ज़्यादा होंगे वो हाई में जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके लिए देखेंगे क्या, इसके लिए हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन, अब आइटम के कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहाँ पर है वो देखने पड़ेंगे पहले। ये है हमारा आइटम का कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे, ये 49 से ज़्यादा है या कम है, ये 49 से ज़्यादा है तो ये हाई चला गया, ये 49 से भी, ये भी ज़्यादा है, ये भी हाई में हो गया, ये भी ज़्यादा है, ये भी हाई हो गया, ये भी ज़्यादा है, इसको भी हाई में रख दिया, ये कम है 49 से तो ये लो हो गया, ये भी कम है तो ये भी लो है, ये भी कम तो ये भी लो, इसकी वैल्यू 49 से कम है तो ये भी लो में चला गया, ये सभी 49 से कम है नीचे के लास्ट के, तो सभी लो हो गए। आप देख रहे होंगे शीट में भी, ये सभी आपके लो में चले गए हैं। तो अब हमें ये वैल्यू भी समझ में आ गई है। अब हम इसको प्लेस कैसे करेंगे, कौन सा आइटम कहाँ रखना है हमें। अब उसके लिए हमने पढ़ा था कि जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई होता है और मीनू मिक्स लो होता है, तो उस ऐसे हम आइटम को कहाँ रखते हैं, पजल में, यानी नंबर 3। जब इस तरह की हमारे पास सिचुएशन होती है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई और मेनू मिक्स लो, यानी कि डिमांड कम और हमारा उसका जो मार्जिन है वो ज़्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको रखते हैं नंबर 3 में, जो कि है पजल। हमने इसको कल पढ़ा था। इसी तरीके से अगर हमारा डिमांड भी ज़्यादा होती है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी सबसे ज़्यादा होता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हम स्टार, यानी नंबर 1 पोजीशन में जाएगा ये। इसी तरीके से जब हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन हाई और मिक्स, जो मेनू मिक्स है वो लो होता है, यानी कि हमारे जो डिमांड है, पॉपुलैरिटी है मीनू आइटम की वो कम है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन ये वाली है जो हमने ऊपर पढ़ी है पजल, तो ये भी नंबर 3 में जाएगा। और जब दोनों हाई होते हैं, ये तो पता ही है हमें, नंबर 1। और जब कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका नंबर होता है 4, लो। ठीक है, फ्लो हॉर्स। और जब दोनों ही हमारे, ये हमारे नंबर 2 की पोजीशन है, ठीक है, ये 4 नहीं है, 4 तो हमारे टोटल होते ही हैं। फोर्थ हमारा जो फोर्थ वाला होता है वो होता है डॉग, जो कि जहाँ पर हमारे दोनों ही लो होते हैं। वो ऐसा आइटम होते हैं, ना तो उनकी डिमांड होती है, या ना तो उतने पॉपुलर होते हैं, और ना ही उनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है। जैसे कि तंदूरी बकरा, ये इनका एक आइटम है, इसकी डिमांड भी नहीं है और ये ज़्यादा सेल भी नहीं होता, और इसकी इनको ज़्यादा इससे रेवेन्यू भी नहीं मिलता, तो ऐसी सिचुएशन में ये डॉग सिचुएशन में है, इसको हम रखेंगे नंबर 4 सिचुएशन में। हमने जब कल मैट्रिक्स पढ़ी थी वो देखा था। तो इसी तरीके से हम सभी को का लो एंड हाई को देख के इसको प्लेस कर देंगे, और फिर हमारी ये शीट कंप्लीट हो जाएगी, और फिर हम इसको एनालाइज करने में बड़ी आसानी होगी कि हमारा कौन सा आइटम की डिमांड सबसे ज़्यादा हो रही है, कौन से की कम हो रही है, कहाँ पर हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इस शीट को देख के हमें सीधे सीधे पे लग रहा है कि हमें इस वाले में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि यही हमारा एक आइटम है जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर ना तो इसकी डिमांड आ रही है, ना ही इसमें सेलिंग हो रही है कुछ। इसी तरीके से जो हमारे स्टार से कम है, जैसे प्लो हॉर्स है, जो नंबर 3 पोजीशन पे पजल, जिसमें शाही मुर्ग 2 प्याजा है और तंदूरी मुर्ग है, ये 2 आइटम जो हमारे हैं रेस्टोरेंट के, ये हमारे नंबर 3 में आ रहे हैं। तो यानी कि इनकी डिमांड क्यों नहीं हो रही है, क्यों इसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसमें हमारा मार्जिन अच्छा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मैं मैनेजर हूँ रेस्टोरेंट का, तो मुझे कुछ ऐसे स्कीम्स चलानी होंगी या प्रमोशनल ऑफर चलाने होंगे, जिससे कि इनमें जो डिमांड है वो बढ़े। ठीक है, so in this way we can improvise our managerial things. Okay, so this entire process called as the menu engineering.